Yes, good morning, class. So, as we were doing the revision of the first chapter of your book, Contemporary World Politics, and today we are going to discuss this topic, India and the Cold War. And majorly we will find in all the topics of this book that at the last of the chapter we will relate the topic with India. Like this, like we had done this, covered this topic, Cold War, all the events of Cold War. Now we are going to relate or see what was the significance of India or the role of India if we talk about the period of Cold War. So that we will discuss. This is in your syllabus, and question is expected coming out of this topic again. Okay. So let's start it from your book only. That is page number 12. As we have already covered yesterday, the name of the topic was a challenge to bipolarity. In that we have already covered the basic and important information regarding NAM and India as being one of the important founding member. So we will continue with that क्योंकि इसमें जो हम पढ़ रहे हैं इंडिया द कोल्ड वॉर मोस्टली विल डिस्कस अबाउट NAM and the role of India during Cold War and in the organization that is NAM. So as a leader of NAM, leader means as a founding member of non-aligned movement, India's response to the ongoing Cold War was twofold. So whenever we talk about the India's role or India's response to Cold War, we'll always talk about twofold. Two mark का question आ जाता है. What was the role of India? What was the response of India during Cold War? So it is going to be twofold into two phases. And the first was at one level, it took particular care in staying away from two alliances. As a member of non-alignment movement, I have told you, India का जो first stand था was we have to stay away from both the alliances. एक तो ये idea था. Okay, तो second level में हम देखते हैं, हमने बोला two fold response था. एक response यही था for the Cold War that we have to stay away from these two alliances. Second देखते हैं. Second was it raised its voice against the newly decolonized countries becoming the part of these alliances. Both these we have discussed yesterday also, but आज हम डायरेक्टली इंडिया का देख रहे हैं रोल क्या. अदरवाइज जनरली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था that India wanted to stay away from both these alliances. That is why it opted and was a member of NAM. And second, India was also against those newly decolonized countries. कौन सी कंट्रीज की थी, कौन से कॉन्टिनेंट्स थे, एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. यहाँ पे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, डीकोलोनाइजेशन इनको मिल रहा था, उनके अगेंस्ट थी इंडिया बिकॉज दे वर जॉइनिंग द अलायंसेस, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंसेस. एंड द रीजन यू नो व्हाई दे वर जॉइनिंग द वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंसेस फॉर देयर प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक gains. They wanted the national security of their territory, but India was against this. India wanted, as we have earned such hard-earned sovereignty, इतनी मुश्किल से जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है, we should not again go and merge with these alliances. Maybe we can again become the colony of these superpowers. So India wanted to be at a separate distance from these two alliances, and also India raised their voice. ये नहीं कि इंडिया अपना आप अलग हो गई, इंडिया अगेंस्ट थी of those countries जो जा रही थी और इनको ज्वाइन कर रही थी. अफ्रीकन कंट्रीज थी, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज थी which were joining these two alliances. तो ये दो फोल्ड समझ आए प्रीति? What were the two folds? Because why are you sitting here? Come here. I have told you when we have started the class, both sit at the last. Priti, if you also want, you can come here. Deepika, are you fine there? If you want, you can come here. If you want. Because come here. So there can be a direct question for 2 marks, so you will be able to answer. I think if there is what is the relation of India towards this Cold War during this time period, so you will say first of all, first decision was to stay away from the alliances, Eastern and Western alliances, and second was India raised their voice against those countries which were joining these two alliances, because India did not wanted these newly decolonized countries to join any of these two alliances. So this is the first part when we talk about India in relation to Cold War. Then moving forward, India's policy was neither negative nor passive. Yes, come. Punch. Okay. So India's policy of non-alignment was neither negative nor passive. As Nehru reminded the world, non-alignment was not a policy of falling away. As we had yesterday also we had discussed about neutrality. इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, इसको बहुत सारे बोला न्यूट्रलिटी से कनेक्ट किया, लिंक किया और आइसोलेशन से इसको लिंक किया. बट हियर नेहरू अगेन रिमाइंडेड द होल वर्ल्ड
कि ये जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट फॉलो कर रहे थे वाज नॉट अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, वाज नॉट अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स एंड वाज नॉट अ पॉलिसी जहां पे हम कह सकते हैं कि इंडिया वाज फ्लाइंग अवे, मतलब डेंजर से दूर भाग रहा था। फ्लाइंग अवे क्या होता है? एनी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई, हम उस सिचुएशन से भाग जाएं, उस सिचुएशन से दूर हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लीइंग अवे। तो इंडिया की जो ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, ना इसे हम न्यूट्रलिटी बोलेंगे क्योंकि न्यूट्रलिटी का मीनिंग हमने बता दिया है क्या है, स्टेइंग अवे फ्रॉम वॉर, ना हम इसको आइसोलेशन बोलेंगे बिकॉज इंडिया आइसोलेट नहीं हुआ था। थर्ड ऑप्शन जरूर लिया था बट इट ऑलवेज एक्टेड कि जो वर्ल्ड में पीस है, डेकोरम है, इन दोनों अलायंसेस के बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इंडिया वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ऑल्दो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस बट इट वाज वेरी एक्टिव during the cold war। अगर एक्टिव नहीं होता वर्ल्ड अफेयर्स में then we would call India as neutral member or a isolated member or a situation जिसमें हम बोलते हैं कि इंडिया ने फ्लीइंग अवे किया, मतलब प्रॉब्लम आई तो दूर हो गया। तो इंडिया का ये जो सिचुएशन था, ये जो स्टैंड था, इसको रिमाइंड किया नेहरू ने when we talk about India and Cold War relations। वही लिखा देखिए, as Nehru reminded the world, non-alignment was not a policy of flaying away। On the contrary, India was in favor of actively intervening in the world affairs। उसके अपोजिट था, इंडिया वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इंटरवीनिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो हमारा चल रहा था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, इंडिया वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज। सॉफ्टन मींस कम करना, वो चाहते थे जो राइवलरीज है दोनों ग्रुप्स के बीच में कोल्ड वॉर में, यूएस और यूएसएसआर के जो अलायंसेस के बीच में प्रॉब्लम्स है, वॉर्स है, टेंशंस है, कॉन्फ्रंट्रेशंस है, इंडिया वांटेड टू सॉफ्टन इट डाउन, रिड्यूस करना चाहता था। इंडिया ने हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन टेंशंस को रिड्यूस करने के लिए ताकि वर्ल्ड में क्या प्रमोट कर सके, पीस एंड डेकोरम। जब पीस और डेकोरम होगा तभी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा सारी कंट्रीज का, ठीक है। तो इंडिया हमेशा ये स्टैंड इंडिया का रहा है। तो यहाँ पर नेहरू ने रिमाइंड किया कि व्हाट इज आवर पॉलिसी एंड व्हाट इज आवर स्टैंड इफ वी टॉक इफ वी आर अ मेंबर ऑफ NAM। NAM is not about neutrality, NAM is not about isolating itself, NAM is not about fleeing away from the problems, but NAM is actively participating to soften down or reduce the tensions and conflicts between these two alliances। Okay, India tried to reduce the differences between the alliances and thereby prevent differences from escalating into a full scale war। इंडिया ने हमेशा कोशिश की ये जो डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में आए लिमिटेड रहे, एक लिमिट को क्रॉस ना करें। ऑफ कोर्स देयर आर वॉर्स, अलग-अलग जगहों पे छोटे-छोटे वॉर्स होते थे इनके आपस में, जो इनके अलायंसेस थे, जैसे हमारा कोरियन वॉर हुआ, हमारा अफगानिस्तान वॉर हुआ है, ठीक है, कॉन्गो वॉर हुआ है। तो दीज आर स्मॉल वॉर्स बट ये लिमिट तक रहे, इट डिड नॉट एस्केलेट और इंक्रीज और मूव ऑन विद द जिसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर बोले, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। तो इंडिया ने इसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, इसी को हम बता रहे हैं यहाँ पर। इंडियाज डिप्लोमेट्स एंड लीडर्स, जितने भी इंडिया के डिप्लोमेट्स थे और इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, वर ऑफन यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड मेडिटेट बिटवीन कोल्ड वॉर राइवल्स। जो कोल्ड वॉर के राइवल्स थे, कौन थे कोल्ड वॉर के राइवल्स? लक्ष्मी, which were the two cold war rivals? US and USSR। So India has always come up to soften and communicate between, वो उनका आपस में कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता था, मिस कम्युनिकेशन की वजह से भी बहुत बार पहले वॉर्स हो चुके हैं। हम दो हैं, इधर यूएस बैठा है, इधर यूएसएसआर बैठा है, किसी ने मिस्चीवियसली मस्ती में ऐसे किसी ने उन पे फायर कर दिया तो ऑटोमेटिकली वहां में मिस कम्युनिकेशन हो जाता था, क्लियर नहीं होता था किसने अटैक किया, क्यों किया है, उनका आपस में वॉर शुरू हो जाता था। तो इसमें हम वो आगे वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, इनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन का काम, मीडिएटर का काम, बिचौलिया होता है, बिचौलिया का काम कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था, ताकि इनके बीच में राइवलरीज को सॉल्व किया जाए, वॉर्स को लिमिटेड रखा जाए, जिससे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में एक्सीलरेट ना हो ये कोल्ड वॉर। क्योंकि वर्ल्ड वाज ऑलवेज नर्वस, जब वी टॉक अबाउट दिस कोल्ड वॉर तो वर्ल्ड हमेशा नर्वस था कि इनके बीच में जो राइवलरीज है, दोनों के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता था। इसी को हमने चैप्टर का नाम किया हमारा कोल्ड वॉर। इट मींस कोल्ड तो था, राइवलरीज थी, कॉन्फ्रंटेशंस थे, टेंशंस थी, कंपटीशन भी था इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इकोनॉमी, एवरीथिंग। बट ये कोल्ड वॉर कभी भी एक छोटी सी गलती से भी हॉट वॉर में कन्वर्ट हो सकता था। ये एक हमने पढ़ा कि हॉट वॉर में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, उनके बीच में क्या था, हमने इस टाइम पीरियड से एक चीज निकल के आई है, डिटरेंस रिलेशनशिप पढ़ा था उस दिन कुछ ही। डिटरेंस रिलेशनशिप क्या था? व्हेन बोथ द अलायंसेस ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दे न्यू हाउ पावरफुल ईच ब्लॉक वाज। अगर ये इस पे न्यूक्लियर अटैक करता है तो दूसरा वाज इक्वली पावरफुल टू रेटिलिएट द वॉर। रेटिलिएट द डिफेंस मींस अगर इसने इस पे अटैक किया तो उसी पावर से वो भी उस पे अटैक कर सकता था। एंड इन द एंड इतना डिस्ट्रक्शन होता इस न्यूक्लियर वॉर से कि आई थिंक कोई लास्ट में बचता भी नहीं,
और बचता भी तो उसके पास कुछ होता नहीं देखने के लिए कि अगर मैंने ये वॉर लड़ा तो इसका क्या आउटकम हुआ। इसलिए बोथ उनका एक स्टैंड रहा कि जहां पे उन्होंने अवॉइड किया हॉट वॉर। ऑल्दो उनके बीच में कॉन्फ्रंटेशंस, टेंशंस हमेशा रहे, वो फ्रेंडशिप नहीं हो सकती थी, राइवलरीज वर देयर, बट डिफरेंस रिलेशनशिप ने क्या किया, एक कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं होने दिया। मैंने बॉयज का एग्जांपल दिया था आपका, दो स्ट्रॉन्ग बॉयज वो कब नहीं लड़ते हैं, जब उन्हें पता है कि वो भी इतने स्ट्रॉन्ग है, मैं भी इतने स्ट्रॉन्ग हूँ, और मुझे पता है कि अगर मेरे सामने वाला वीक है तो मैं बिना समझे उसके लगा दूंगा, है ना, मुझे पता है कि वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो डिफरेंस रिलेशनशिप ये होता है जब हमें पता है कि सामने वाला भी इक्वली स्ट्रांगली हमें अपोज डिफेंड कर सकता है। सो दिस इज डिफरेंस रिलेशनशिप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो इंडिया वाज हैविंग अ रोल ऑफ कम्युनिकेटिंग बिटवीन कोल्ड वॉर राइवल्स सच एज द कोरियन वॉर इन अर्ली 1950s। As I told you, जब कोरियन वॉर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू has played a very important role to reduce and soften the war between North Korea and South Korea, ठीक है, 1950s की स्टार्टिंग में। तब हमारा नैम का तो नहीं हुआ था, बट स्टिल इंडिया तो था ना, इंडिया का रोल तो था कोल्ड वॉर में। It is important to remember that India chose to involve other members of the non-aligned groups in this mission. During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations. Now I am reading it, you will be able to understand India के क्या हमेशा effort रहे during Cold War. It is important to remember that India chose to involve other members of the non-aligned group in this mission. जैसे India was actively participating in the world affairs as a member of non-alignment movement, तो non-alignment में जो और countries थी और members थे, इंडिया ने उनको ही motivate किया है कि we should try and soften the rivalries between these two alliances, क्योंकि एक particular area नहीं था कि इंडिया का लोकेशन यहाँ पर है तो इसके आसपास कहीं पे rivalries है, तो इंडिया बीच में एक mediator का काम कर रही थी, बिचौलिया का काम कर रही थी। बट अगर दूसरे पार्ट में साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कहीं पर भी हो रहा है और वहां पे कोई नाम का कोई मेंबर है, तो उसने उस मेंबर को मोटिवेट किया कि वो भी अपने रीजन में ट्राई करेगी जो राइवलरीज है दोनों अलायंसेस के बीच में इसको कम कर सके, ठीक है, जो रीजन हमारे आसपास है। During the Cold War, India repeatedly tried to activate those regional and international organizations which were not a part of alliances led by the US or USSR. तो बहुत सारे regional और international organizations थे, okay, which wanted peace and development around the world, and they were not the part of any of the two alliances. तो नाम ने उसको भी मोटिवेट किया कि उसको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए टू रिड्यूस द rivalries between these two alliances. तो इंडिया यहाँ पे अपना आप तो वर्क कर ही रहा था, प्लस इट वाज मोटिवेटिंग और कह सकते हैं इन्फ्लुएंसिंग द अदर मेंबर्स आल्सो टू वर्क टुवर्ड्स द पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. Nehru reposed great faith in the genuine commonwealth of free and cooperating nations. It's cooperating, cooperating nations that would play a positive role in softening, if not ending, the Cold War. यहाँ पर एक होता है Commonwealth. Commonwealth countries हम देखते हैं. Commonwealth games you must have heard. 2010 में भी हुई थी दिल्ली में. So Commonwealth में वो countries participate करती हैं which were once a colony of the British rule. जो ब्रिटिशर्स के अंदर कॉलोनीज रह चुकी हैं कंट्रीज, इंडिया भी रह चुकी है जैसे, ठीक है. तो we made a group which was called Commonwealth. Well, where we treated each and every country as equal and we tried कि जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, इक्वालिटी की हम बात करते हैं सारी कंट्रीज के साथ, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे. तो वी मेड अ ग्रुप जो एक कॉलोनी थे एक टाइम पे, दैट इज कॉल्ड कॉमनवेल्थ ग्रुप for free and cooperating nations that would play a positive role in softening, if not ending, the Cold War. Non-alignment was not, as some suggest, a noble international cause which had little to do with India's real interest. अब यहाँ पे हो रहे हैं कुछ positive points इंडिया के लिए भी रहे हैं. Although India was trying to actively participate to soften the rivalries between two alliances, Eastern and Western alliances, बट इस नाम जो एक हमने ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया, फाउंडिंग मेंबर बने, उससे इंडिया के कुछ पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल गेन्स भी हुए हैं. तो इंडिया को उससे क्या क्या फायदा हुआ है वो हम देख रहे हैं. ये पॉजिटिव गेन्स है इंडिया के, जो अननोइंगली भी इंडिया को उससे फायदा हुआ है एज अ मेंबर ऑफ नाम. A non-aligned posture also served India's interest. वही कह रहे हैं, इंडिया के इंटरेस्ट भी सर्व किए इसने very directly in at least two ways. तो इसमें हम ब्रॉडली two ways में, बहुत सारे होंगे बट two ways में हम देख रहे हैं. फर्स्ट जो इंडिया को इससे फायदा हुआ है, देखते हैं इंटरेस्ट जो इंडिया के इससे गेन हुए हैं. फर्स्ट, non-aligned allowed India to take international decisions and stances that serves its interest rather than the interest of the superpowers and their allies.
If India, suppose India would have been a part of Eastern Alliance or Western Alliance, India की कोई अपनी पर्सनल फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, इंडिया कोई अपने डिसीजंस नहीं ले पाता. But in this context, when we are talking about India and Cold War and India being a member of NAM and founding member of NAM, India यहाँ पे क्या हो गया था? Independent हो गया था. India was actively participating to soften the rivalries between the two alliances. तो एक डिसीजन मेकिंग आ गई थी इंडिया के अंदर, ठीक है. इंडिया यहाँ पे और क्या था? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, अपने डिसीजंस खुद ले पा रहा था. अदरवाइज फॉर एनी डिसीजन मेकिंग इंडिया वुड हैव बीन डिपेंडेंट ऑन यूएस या यूएसएसआर. सपोज इंडिया यूएसएसआर के अलायंस में मिल जाता, तो इंडिया अगर कुछ भी डिफरेंट करना चाहता फॉर टू इंक्रीज इट्स इकोनॉमी और ब्रिंग पीस एंड डेकोरम इन इट्स विद इन इट्स टेरिटरी, इंडिया अपने अंदर कुछ भी करना चाहता चेंजेस, तो उसे किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता? यूएसएसआर के ऊपर. इकोनॉमिक गेन्स के लिए यूएसएसआर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता, वेपन्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हर चीज के लिए. तो हम अपने आप ग्रो नहीं हो पाते, हमारी हैबिट क्या पड़ जाती? वी वुड हैव बीन डिपेंडेंट ऑन यूएसएसआर और यूएस. But being an independent member or opting for the third option, here हमने सीखा to take our own international decisions. We framed our own foreign policy. हमारी दूसरी कंट्री से रिलेशन कैसे होंगे, हम यूएस से कैसे रिलेशन होंगे, हमारे यूएसएसआर से कैसे रिलेशन होंगे, हमारी नेबरिंग कंट्रीज से हमारी क्या रिलेशन होंगे, कौन कौन सी हम ट्रीटीज साइन करेंगे, डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या करेंगे. आज भी इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी है. हमारी जो गवर्नमेंट होती है किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम करती है? नहीं, हमारे अपने प्लान्स होते हैं. तो इंडिया ने यहाँ से ये चीज सीखी. तो एक ये अलग होने का ही फायदा हुआ, क्योंकि अगर हम किसी अलायंस से जुड़ जाते हैं तो वी वुड हैव बीन डिपेंडेंट, और शायद जो आज इतना ग्रोथ हुआ है, इतना डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, वो भी नहीं पॉसिबल हो पाता. वहां से हमने सीखा है हाउ टू ग्रो. एक ये हमारा इंटरेस्ट फुलफिल हुआ है नाम से, टू बी अ मेंबर ऑफ नाम. Second, India was often able to balance one superpower against the other. If India felt ignored or unduly pressurized by one superpower, it could tilt towards the other. Neither alliance system could take India for granted or bully it. You must have understood it. इंडिया ने जो स्टैंड लिया था, जो स्टैंड लिया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर की वी आर ऑप्टिंग द थर्ड ऑप्शन, दैट इज नाम. यहाँ से क्या इंडिया ने क्या किया? बीच में खड़ा है, दोनों साइड जो दोनों सुपर पावर है, दोनों को क्या कर रखा है? बैलेंस कर रखा है. यूएस को भी पता है कि इंडिया इज नॉट टुवर्ड्स यूएसएसआर एंड यूएसएसआर नोस कि ये यूएस के साथ नहीं है. तो दोनों ट्राई क्या करेंगे? इंडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए. इंडिया को दोनों ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है कि उनके अलायंस में हम जुड़ जाए, क्योंकि एशिया का एक इंपॉर्टेंट रीजन इस टाइम पे इंडिया बन गया था. ठीक है, तो इंडिया को इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश की है, बट इंडिया ने दोनों को नहीं ज्वाइन किया. तो इंडिया ने क्या मेंटेन कर रखा है? बैलेंस मेंटेन कर रखा है. अगर एक साइड उसे प्रेशराइज करती है तो दूसरी साइड को क्या है कि अगर हम इसे प्रेशराइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया विल गो एंड ज्वाइन द अदर अलायंस. तो इंडिया ने ये बैलेंस मेंटेन करके रखा, जिससे दोनों के अंदर डर था कि अगर हम इंडिया को प्रेशराइज करेंगे या एनी हाउ बुली करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया से तो बहुत पावरफुल थे ये दोनों अलायंसेस, बट इंडिया को बुली या प्रेशराइज नहीं करा, क्योंकि उनको पता था ऑटोमेटिकली इंडिया भी दूसरी साइड जाकर के ज्वाइन कर देता. तो इंडिया ने ये बैलेंस बना के रखा. तो उसके अपने बहुत सारे इंटरेस्ट है, फुलफिल होते रहे. कभी उसे हेल्प पड़ी किसी यूएसएसआर के तो उससे भी लिए, कभी यूएस की जरूरत पड़ी है तो उसकी, बट इट डिड नॉट ज्वाइन द अलायंस फॉर्मली किसी की अलायंस ज्वाइन नहीं किया. फॉर एग्जांपल मैंने बताया 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया बांग्लादेश, जिसमें फॉर्मेशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान, जिसमें बांग्लादेश बिकेम द इंडिपेंडेंट नेशन. तो उसमें क्या हुआ था? पाकिस्तान की तरफ से कौन आया था उसे सपोर्ट करने? यूएस आया था. तो ऑटोमेटिकली इंडिया का सपोर्ट में कौन आ गया था? यूएसएसआर. बट इंडिया का इस टाइप का रिलेशन था, बैलेंस क्या था? अगर इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करने आ जाता यूएसएसआर, तो इंडिया को कौन सपोर्ट करता? यूएस. इट मींस बैलेंस बना रखा, दोनों तरफ से फायदा हो सकता है. सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है इंडिया उसे कैसे यूज कर सकती थी. इसीलिए सेकंड अब रीड कर रहा हूं तो यू विल एबल टू रिलेट दैट. सेकंड, इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर. एक सुपर पावर को बैलेंस करती थी अगेंस्ट द अदर, क्योंकि बीच में थी इंडिया. इन इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज्ड बाय वन सुपर पावर, इट कुड टिल्ट और मूव टुवर्ड्स द अदर. इसी डर से नीदर अलायंस सिस्टम कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड. इसी रीजन से कोई भी फॉर ग्रांटेड इंडिया को नहीं ले सकता था. नीदर दे बुलीड इंडिया. ओके, सो दीज आर द टू इंटरेस्ट जो इंडिया के फुलफिल हुए ड्यूरिंग कोल्ड वॉर. India's policy of non-aligned was criticized on a number of counts. Yesterday also I told you, जब भी कोई पॉलिसी होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, there will be supporters also and there will be criticizers also. कोई भी चीज होगी उसका पॉजिटिव पार्ट भी होता है, नेगेटिव भी होता है. तो when we talk about the non-alignment movement of India and India being one of the founding member, उसके बहुत सारे criticism भी हुए हैं. Criticism basically इसीलिए हुए हैं because this was the founding member.
It had laid certain principles, structure बनाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, ठीक है। उसी को बहुत सारी कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया कि इंडिया ने वायलेट किया है उसको कई बार। तो लेट्स सी उसके अंदर व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी। फर्स्ट, इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। सॉरी, स्टार्टिंग से देख रहा हूं। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स। बहुत बार इंडिया की जो ये पॉलिसी है इसको क्रिटिसाइज किया गया है। हियर वी मे रेफर टू ओनली टू क्रिटिसिज्म, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस वी विल सी जस्ट two situations जहां पे इंडिया को क्रिटिसाइज किया है। लेट्स सी द फर्स्ट वन। फर्स्ट इज इंडियाज नॉन अलाइनमेंट वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। Why it was said unprincipled? Because the rules, regulations, the structure, the pattern which India itself had made, India has violated it many times. We'll say it here. In the name of pursuing its national interest, India, it was said, often refused to take a firm stand on crucial international issues. As a third option in front of the Cold War, third option था NAM, India did not take a firm stand into international conflicts, international issues. बहुत सारे international issues जहाँ पर आए हैं, इंडिया को एक डिसीजन लेना चाहिए था, एक स्टैंड लेना चाहिए था for non-aligned countries, वहाँ पे इंडिया ने एक प्रॉपर स्टैंड नहीं लिया है। First is this. Second, it is suggested that India was inconsistent and took contradictory postures, having criticized others for joining alliances. इंडिया ने क्या किया, हमने पढ़ा था अभी टू डेवलपमेंट जहाँ पे जब पढ़ रहे थे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, दो टाइप के हमने क्या देखे थे, टू फोल्ड था इंडिया का रिलेशन। तो पहला क्या था, इंडिया अलायंस से दूर रहना चाहता था। दूसरा हमने क्या बोला, इंडिया ऑलवेज रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट द मेंबर्स जो ज्वाइन कर रहे थे अलायंसेस को, जो डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी जो ज्वाइन करती थी अलायंसेस को, इंडिया वाज अगेंस्ट दोस कंट्रीज। बट इंडिया इटसेल्फ, व्हेन देयर वाज अ सिचुएशन of the war of 1971 which we have discussed just now, India itself had signed a 20-year friendship treaty with USSR. So here it was criticized by the criticizers, by the critics of NAM, that India being a member, founding member of NAM, had been acting unprincipally. In unprincipled way में उन्होंने ये किया है। So जो एक बोल सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस पुट डाउन किए थे हमने NAM के, उसको ब्रेक इंडिया ने किया यहाँ पर। India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with the USSR for 20 years. This was regarded particularly by the outside observers as virtually joining the Soviet. तो जो बाहर से लोग observers होते हैं, they had said that India had joined USSR, although India did not join the alliance of USSR. Just एक friendship treaty sign की थी, just for the to protect the nation's interest. The Indian government view was that, तो इसका रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म पर इंडिया की गवर्नमेंट ने ऐसे दिया है, उन्होंने बोला इंडिया नीडेड डिप्लोमेटिक एंड पॉसिबली मिलिट्री सपोर्ट ड्यूरिंग द बांग्लादेश क्राइसिस। इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत थी बिकॉज पाकिस्तान वाज बीइंग सपोर्टेड बाय यूएस मिलिट्री इकोनॉमिकली in all the spheres. So India needed a diplomatic and military support during the Bangladesh crisis, and that is any case treaty did not stop India from having good relations. और जो ये treaty थी हमारी कौन सी कोल्ड NAM की जो ये पॉलिसी थी, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि हमारी फ्रेंडशिप या गुड रिलेशंस नहीं हो सकते हैं दोनों अलायंसेस के साथ. Of course we can have good relations, we can have good connections with USSR or US, but we will not be a part of their अलायंस. तो इंडिया ने ये रिमाइंड किया, हम ये नहीं कि हमारी उनसे लड़ाई हो गई है. नाम का ऑब्जेक्टिव है टू सॉफ्टन डाउन द राइवलरीज एंड टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अलायंसेस. इट डजंट मींस दैट वो हमारे दुश्मन बन गए. वी कैन हैव गुड रिलेशंस विद देम. हमें जरूरत पड़ी, हमारा नेशनल इंटरेस्ट था, नेशनल सिक्योरिटी की बात थी, पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर चल रहा था. वी वर इनटू द बैकफुट बिकॉज़ यूएस वाज सपोर्टिंग Pakistan, so we had to sign this 20-year friendship treaty with USSR for military reasons, for national security. It doesn't mean we are becoming the member or we are joining the alliance of USSR. तो ये clarify किया था इंडियन गवर्नमेंट ने. So यहाँ पे किसी को any problem? Non-alignment as a strategy evolved in the Cold War context, as we will see in chapter 2. So this topic has been ended. This is like the conclusion of this chapter, which will continue to the next chapter when we will study about end of bipolarity. जो ये bipolarity चल रही थी वर्ल्ड में, यूएस और यूएसएसआर की दोनों दो सुपर पावर, इसमें से एक क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है. कौन सा? यूएसएसआर. Then we will see what was the global politics at the world level when there was only one superpower, that was US.
So non-alignment as a strategy evolved in the Cold War context. तो जो ये non-alignment की हम policy पढ़ रहे हैं, that evolved because of the Cold War. अगर Cold War नहीं होता तो non-alignment जैसा कोई organization बनता ही नहीं. जो वो बना organization जो third option countries को मिला, it because of the two rival groups. Eastern Western Alliance का अगर ये Cold War नहीं चल रहा होता, तो हमारा non-alignment movement कभी होता ही नहीं. As we will see in chapter 2, with the disintegration of the USSR and the end of the Cold War. So two things you have to remember whenever we are saying disintegration of USSR or end of Cold War, it is one and the same thing. Because Cold War खत्म ही कब हुआ? जब USSR क्या हो गया? Disintegrate हो गया. Two partners थे. एक ये partner था, second ये partner था. इनकी rivalry थी which was called Cold War. अब ये वाला हार जाता है, disintegrate हो जाता है. This is only left, तो there will be Cold War. अब तो ये सुपर पावर बन गया. इसको हमने थर्ड चैप्टर में क्या बोला? यूएस हेजेमनी. हेजेमनी का मतलब हिंदी में क्या था? दादागिरी, जिसका डोमिनेंस है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, जिसका पूरा कंट्रोल था इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में, उसको क्या बोलते हैं? यूएस हेजेमनी. तो जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? कोल्ड वॉर क्या हो गया? एंड हो गया. ठीक है. और 1991 में सब, ठीक है. इसीलिए दो चीजें आएंगी पर उससे कंफ्यूज मत होना. डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर या कोल्ड वॉर एंड होना, इट इज वन एंड द सेम थिंग. 1991 में both as an international with the disintegration of the USSR and the end of the Cold War in 1991, non-alignment both as an international movement and as a core of India's foreign policy lost some of its earlier relevance and effectiveness. But after 1991 जब कोल्ड वॉर एंड हो गया, तो when we talk about non-alignment movement, it is still there, but उसका वो effectiveness और जिस चीज का उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो कहीं ना कहीं फेड अवे हो गया, हल्का पड़ गया. ठीक है. However, non-alignment contained some core values. आपकी डेट में हम देखेंगे तो जो उसके इफेक्टिवनेस था, जो उसका पर्पस था, एम्स थे, वो तो फेड अवे हो गए विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर और विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. क्योंकि बेसिकली वो इवॉल्व ही किसलिए हुआ था? जब इन दो के बीच में जो राइवलरीज चल रही थी, तो कंट्रीज को थर्ड ऑप्शन मिल जाता था, वो था नैम. अब ये एंड हो गया है, ये सुपर पावर अकेला बचा है, तो राइवलरीज तो है नहीं, तो नाम का भी जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो इनके प्रिंसिपल्स थे, वो थोड़े से फेड अवे हो गए, बट इट इज स्टिल फंक्शनल. अब देखते हैं, बट इससे हमने कुछ कोर वैल्यूज है, इसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो हमने सीखे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. लेट्स सी दैट. However, non-alignment contained some core values and enduring ideas. Some ideas were really good. It was based on the recognition that decolonized states share a historical affiliation and can become a powerful force if they become together. यहाँ से हमने ये सीखा कि NAM कुछ भी powerful नहीं था as compared to US and USSR. Still they had that potential where they thought कि अगर हमारी सारी जो decolonized छोटी-छोटी countries हैं, हम एक साथ हो जाएं, तो we can be a powerful group. और वैसा उन्होंने करके दिखाया. They became powerful only because they had unity, they had mutual understanding amongst themselves. तो एक बेसिक सा इंपॉर्टेंट आइडिया जो निकल के आता है कोल्ड वॉर से नैम का, फर्स्ट कोर वैल्यू ये है कि हम में यूनिटी है, तो वी कैन डू एंड अचीव एनीथिंग. आई एम रीडिंग दैट पॉइंट अगेन सो यू विल एबल टू रिलेट इट. However, non-alignment contained some core values and enduring ideas. It was based on the recognition that decolonized states share a historical affiliation and can become a powerful force if they come together. It meant that the poor and often very small countries of the world need not become followers of any of the big powers. इन्होंने एक और चीज प्रूव की, जरूरी नहीं है if we are weak, if we are not having sufficient economic growth or development, we have just got the independence. It does not mean we will start following the superpowers or we will start asking for the help from some superpowers. As a developing or underdeveloped countries with unity, we can grow ourselves. We need not to become an ally of some superpower. एक ये भी लेसन हमने इससे सीखा. That they can pursue an independent foreign policy. और उनकी अपनी भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो सकती है. स्मॉल स्मॉल नेशंस की भी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस हो सकती है, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो सकती है इफ दे स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ अलायंसेस. अगर ये नए सारे मेंबर इन अलायंस से मिल जाते तो शायद वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, हॉट वॉर में कन्वर्ट हो ही जाता. इफ किसी कंट्री के पास थर्ड ऑप्शन नहीं होता वहां पर, तो वर्ल्ड पूरी कंप्लीटली शार्पली ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस में डिवाइड हो जाता और डेफिनेटली थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था. तो नाम हियर हैज एक्टेड टू सॉफ्टन द rivalries between these two alliances where it gave many countries to join NAM.
पर उसका मतलब हमने बता दिया है, उसका मतलब वो नहीं है न्यूट्रलिटी, आइसोलेशन। इससे हमने क्या सीखा है, इट ऑलवेज एक्टेड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली टू रिड्यूस डाउन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू अलायंसेस. It was also based on the resolve, democratized and international system of thinking about an alternative world order to redress existing inequalities. The core ideas remain relevant if even after the Cold War has ended. तो जो ये हम core values के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमने सीखा है, ये आज भी relevant है. NAM इतना functional नहीं होगा, but इससे जो हमने core values सीखी हैं, क्या हो सकता है, हम किस तरीके से hot word को हम avoid कर सकते हैं, and personal life में भी हम इससे बहुत सारी चीजें core values लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं. So it was all about India and the Cold War. इसके साथ we are ending this chapter. Basically two topics are there that is not a part of your syllabus, but I want you एक बार reading ले लेना उसकी. Maybe that can be important for you because I don't have so much of time where I will take the reading of the whole chapter for you here. So I will try and give you the notes for that. And from tomorrow we will start the second chapter. Because basically I'm trying कि मैं जो सबसे ज़्यादा important आपकी topics है from where the direct questions will be there, वो topics cover कर लो first of all. Okay. So इसका जो एक wait.